So guys, in last class, we were talking about partial differentiation of two variables, three variables, and so on. Some evaluation of partial differentiations we have done. First order partial derivatives, second order partial derivatives, and some evaluation. Fundamental formulas we have done already of partial derivatives of first order and second order. Then we discussed about homogeneous functions, degree of homogeneous functions, Euler's theorem based on homogeneous function, and proofs of Euler's theorem statements based on homogeneous function. And also we discussed one question which is of verification of Euler's theorem. यहाँ तक हमने कर लिया था. I hope you revised the last class so that we can take today's class very smoothly, right? तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, आई होप. तो इससे आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ. मिड टर्म का जो भी सिलेबस है मैं आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. कैन यू सी द स्क्रीन? एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes. Okay, quite good. So this was the homogeneous function, Euler's theorem, and just a second. This was the first formula, or you can say first expression for Euler's theorem, and this is the proof we have done. Proof is very important, no doubt. And this was the second expression for Euler's theorem. इसका भी प्रूफ हमने किया है. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ना. मैं मिड टर्म में कुछ भी पूछ सकता हूँ, प्रूफ्स भी पूछ सकता हूँ. मैं जो भी पढ़ाऊंगा उनमें से कुछ भी पूछ सकता हूँ. आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछूंगा. एंड दिस वाज द क्वेश्चन, वन क्वेश्चन वी हैव डन वेरिफिकेशन. और मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिफिकेशन के लिए बोला जाए तो आप यूलर्स का फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, सेकंड फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे. टुडे द सेकंड क्वेश्चन, if u is equal to sine inverse x raised to the power 1 by 4 plus y raised to the power 1 by 4 divided by x raised to the power 1 by 5 plus y raised to the power 1 by 5, then prove that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to 1 upon 20 times of n u. Can anybody tell me what approach we have to apply for solving this question? Any guess? Please tell me by unmuting yourself. Anybody? सर पहले ऊपर से साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 से सर किसी भी सर पहले x की पावर 1/4 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, और नीचे से x की पावर 1/5 ले लेंगे कॉमन. फिर सर फंक्शन साइन इनवर्स x बाय y के फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी y बाय x के फॉर्म में. Okay, then फिर आगे डिफरेंशिएट करेंगे सर. differentiate करेंगे. Sir, Yes. sir, Yes, please. Yes, I can hear you. Please tell me. Yes. कनेक्शन नहीं आ रहा सर. हेलो. बताइए क्या बोल रहे हैं आप? Okay, anybody else? I repeat the question. If u is equal to sine inverse x raised to the power 1 by 4 plus y raised to the power 1 by 4 divided by x raised to the power 1 by 5 plus y raised to the power 1 by 5, then prove that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to 1 by 20 tan u. Guys, try कीजिए, बताइए मुझे please by unmuting yourself. Any idea? सर
पहले अपन साइन को u की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में साइन u इक्वल्स टू x की पावर 1/4 प्लस y जो ठीक भी है, दे रखा ठीक है, है। ठीक उसके है, बाद x की पावर 1/4 ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे से x की पावर 1/5। ठीक है। फिर ये उस फॉर्म में आ जाएगा f ऑफ x अपॉन y। ओके, देन फिर सर वो फर्स्ट थ्योरम। वेरी गुड। देखिए, व्हाट्स योर नेम? अनीशा जहांगीर। अनीशा। अनीशा, यू अटेम्प्ट वेरी गुड, क्वाइट गुड। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करने बैठ जाते हैं, इफ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई है। अगर आप यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी लेंथी, और अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे तो अगेन इट विल बी वेरी वेरी लेंथी, बिकॉज डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, और डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब है यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। So if you differentiate this u with respect to x partially or y partially, it will be very very lengthy. और उसके बाद में यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करके इवेल्युएशन करना, इट्स क्वाइट लेंथी, वेरी 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 लेंथी। तो अगर कोई डायरेक्ट करने की सोच रहा है तो वो बेवकूफी है, ऐसा नहीं करना है। कभी भी x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाता है तो आपको दिमाग लगाना है यूलर्स फर्स्ट फॉर्मूले पे, क्योंकि यूलर्स फर्स्ट फॉर्मूला ये कहता है कि x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to nu if u is a homogeneous function, right? यहां पे u is not a homogeneous function, क्योंकि साइन इनवर्स साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर से x रेज टू द पावर 1/4 कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से x रेज टू द पावर 1/5 कॉमन लेंगे, तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साइन इनवर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 1/4 प्लस y रेज टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/5 प्लस y रेज टू द पावर 1/5 इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। u होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट होमोजेनियस। बट अगर इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएं, लेफ्ट में ले जाएं और साइन u बना दें, तो साइन u जो होगा वो होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। u is not a homogeneous function, so we cannot apply Euler's theorem on u, because Euler's theorem always apply on homogeneous functions. Since u is not a homogeneous function, we cannot apply Euler's theorem on u, but sin u is a homogeneous function, so we can apply Euler's theorem on sin u. देखिए, ये देखिए, u को मैं लेफ्ट में ले गया तो sin u बन गया, sin u इज इक्वल टू दिस। अब sin u को थोड़ी देर के लिए आप z एज्यूम कर लीजिए, तो z इज ए होमोजेनियस फंक्शन, और वी कैन से sin u इज ए होमोजेनियस फंक्शन। So z is equal to, take the highest power of x from numerator and take highest power of x from denominator. तो न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर आएगी x रेज टू द पावर 1/4, डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर आएगी x रेज टू द पावर 1/5, तो x रेज टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/5, इन दोनों को क्लब कर दें तो x रेज टू द पावर 1/20 हो जाएगा। अंदर बचेगा न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/4, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर 1/5। एंड यू कैन सी इट्स अ फंक्शन ऑफ y अपॉन x, सो दिस फंक्शन z कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर 1/20 फंक्शन ऑफ y अपॉन x। सो यू कैन सी z which is a sin u. Sin u is a homogeneous function of degree 1/20. Sin u
is a homogeneous function of degree 1 by 20. U is not a homogeneous function, but sin u is a homogeneous function of degree 1 by 20. अब अगर sin u होमोजीनियस फंक्शन है तो हमें sin u पर यूलर्स का फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाई कर दीजिए. So by Euler's theorem का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. So देखिए यहाँ पे x del upon del x of f, del upon del x of sin u, because sin u is a homogeneous function here, plus y del upon del y of f, that is del upon del y of sin u is equal to nf. n यहाँ पे डिग्री है 1 by 20 और f का मतलब यहाँ पे है homogeneous function, that is sin u. So we just apply the Euler's theorem on homogeneous function sin u. अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन. एक स्टेप यहाँ मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. देखिए इसके बाद में क्या स्टेप बनेगा हमारा. यू कैन वैसे तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ वेरी इजीली, लेकिन ठीक है कर देता हूं मैं. देखिए x एज इट इज del upon del x of sin u का डिफरेंशिएशन हो गया cos u और u का डिफरेंशिएशन हो गया del u upon del x. प्लस y as it is del upon del y of sin y. तो पहले sin y का डिफरेंशिएशन हो गया, sin u का डिफरेंशिएशन हो गया cos u और फिर u का डिफरेंशिएशन हो गया y के रेस्पेक्ट में del u upon del y is equal to 1 upon 20 sin u as it is. 1 upon 20 sin u as it is. राइट. अब आप देखिए लेफ्ट साइड से cos u कॉमन आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से cos u को कॉमन लेके राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बचेगा x del u upon del x, x del u upon del x प्लस y del u upon del y प्लस y del u upon del y इज इक्वल टू cos u नीचे चले गया लेफ्ट साइड से कॉमन आके, तो 1 upon 20 sin u upon cos u, that is 10. Hence any doubt in this question? This is the beauty of Euler's theorem. अगर आपको Euler's theorem पता नहीं होती तो इस क्वेश्चन को आप 4 से 5 पेजेस में भी सॉल्व नहीं कर सकते थे. It will be quite lengthy. But by using this Euler's theorem approach, we can solve it in half of the page, in fact. Any doubt, please ask. No, sir, no doubt. Okay. So keep in mind, for this question, u is not homogeneous, sin u is homogeneous of degree 1 by 2. So we will apply Euler's theorem on sin u and get the result. Okay, sir. Okay. Okay, this is second question and ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं अभी. इट्स ए सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन, सो वी आर स्किपिंग एक्चुअली. ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. इफ u is equal to tan inverse
x cube plus y cube divided by x plus y, then show that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to sine 2u, and x square del square u upon del x square plus 2xy del square u upon del x del y plus y square del square u upon del y square is equal to sine 2u 1 minus 4 sine square u. तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए. क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल. A function u is given, which is a function of two variables. U is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x plus y. If this function is given, then we have to prove these two expressions. अब आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रूव करना है ये वाला यूलर्स फर्स्ट फॉर्मूला है, और ये जो सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करना है ये यूलर्स सेकंड फॉर्मूला है. सो नो डाउट हम इसमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, बट यूलर्स थ्योरम सिर्फ होमोजेनियस फंक्शन पे ही अप्लाई होती है. u is not a homogeneous function here because of this tan inverse. It's an issue. U is not a homogeneous function here because of this tan inverse, but tan u is a homogeneous function. But tan u is a homogeneous function. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में u is equal to sin inverse something जो था वो homogeneous function नहीं था, but sin u homogeneous function था, और हमने यूलर्स थ्योरम sin u पर अप्लाई किया था. Similarly, here u is equal to tan inverse something is not an homogeneous function, but tan u is a homogeneous function, and we can apply Euler's formula for tan u. देखते हैं कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है. सो u is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x plus y. tan inverse इधर ले गए, tan u is equal to ये x cube आएगा यहाँ पे, x cube plus y cube divided by x plus y. कैपिटल U एज्यूम कर लीजिए इसको. सो कैपिटल U is equal to take highest power of x from numerator and take highest power of x from denominator. न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर x क्यूब आएगी, डिनोमिनेटर से x की हाईएस्ट पावर x आएगी, x क्यूब अपॉन x x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया. ब्रैकेट में न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल क्यूब, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल क्यूब divided by 1 plus y upon x, 1 plus y upon x. So you can see very easily that this function which is in bracket is function of y upon x. So u can be written as x square, some arbitrary function of y upon x. So you can see very easily that u is a homogeneous function of degree 2. आप देख सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है. U is a homogeneous function of degree 2. और U का मतलब है हमारा tan U. So tan U is a homogeneous function of degree 2. अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करना है तो हमें यूलर्स थ्योरम को tan U पर अप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड प्रूव करना है तो सेकंड का प्रूफ मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इसका डेरिवेशन करवाया था, तो कि आपको क्वेश्चन भी वैसे ही करना है जैसे डेरिवेशन किया था. तो सेकंड का प्रूफ हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने डेरिवेशन किया था. चलिए पहले फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं. अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, x del capital U upon del x plus y del capital U upon del y, because U capital U is a homogeneous function, is equal to nf. n मतलब होता है डिग्री. डिग्री अभी आपने देखा 2 है तो nf 2u. कैपिटल U का मतलब tan U है, यहाँ पे tan U पुट कर दिया. x del upon del x of tan U plus y del upon del y of tan U is equal to 2 tan U. डिफरेंशिएशन कर दीजिए. x as it is,
tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u del u अपॉन del x, u का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज tan u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर u और u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 tan u एज इट इज। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है, तो sec स्क्वायर u को कॉमन लेके आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड में बचेगा x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y इज इक्वल टू 2 tan u डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर u। तो 2 tan u डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर u को हम 1 अपॉन sec स्क्वायर u को हमने cos स्क्वायर u पढ़ा। इस tan u को आप sin u अपॉन cos u कर दीजिए, एक cos u से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 sin u cos u, और 2 sin u cos u को आप sin 2u लिख सकते हैं, which is the required result. Hence, any doubt in first proof? Please ask. Any doubt in first proof? No, sir. Very good. अब सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रूफ का स्टाइल वही है जो सेकंड के डेरिवेशन का स्टाइल था। मतलब फर्स्ट आपने जो प्रूफ किया है उसको लीजिए, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, जो रिजल्ट आ रहा है उसको x और y से मल्टीप्लाई कीजिए रेस्पेक्टिवली और ऐड कर दीजिए, जैसा मैंने प्रूफ करवाया था बिल्कुल वैसा ही। देखिए सेकंड प्रूफ, आपको अभी जो फर्स्ट रिजल्ट मिला है ये वाला, तो फर्स्ट रिजल्ट मिला है x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to sin 2u। मैं आपको याद दिला देता हूं, आपको मैंने जब इसका डेरिवेशन करवाया था, यूलर्स थ्योरम के सेकंड स्टेटमेंट का डेरिवेशन क्या करवाया था, कैसे करवाया था। अच्छा, यूलर्स थ्योरम का सेकंड स्टेटमेंट क्या था, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1f। ये था, याद कर लीजिए। और उसका डेरिवेशन मैंने आपको कैसे करवाया था, यूलर्स का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू nf। इस फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया था, फिर हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया था, फिर जो रिजल्ट आया था उसको x से मल्टीप्लाई किया था, दूसरे रिजल्ट को y से मल्टीप्लाई किया था, उन दोनों को ऐड किया था। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। अभी आपको ये फर्स्ट रिजल्ट आया, x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to sin 2u। इस फर्स्ट रिजल्ट को पहले आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड रिजल्ट आएगा उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करने का स्टाइल वही पुराने वाला है जो डेरिवेशन में किया था, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू sin 2u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos 2u डेल u अपॉन डेल एक्स। sin 2u का अगर आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2u डेल u अपॉन डेल x, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा 2 cos 2u डेल u अपॉन डेल y। क्यों? Because u is a function of x and y both. That's why.
सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 को, x del square u upon del x del y plus del u upon del y plus y del square u upon del y square is equal to 2 cos 2u del u upon del y। जिसने यूलर्स थ्योरम के सेकंड स्टेटमेंट का डेरिवेशन रिवाइज किया होगा, जो मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था, अगर उसने रिवाइज किया होगा तो उसको ये वाला पार्ट आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका स्टेप्स एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे डेरिवेशन में। दिव्या इज हियर? यस दिव्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? Yes, sir, it's clear. It's clear and it's same as the derivation or not? सर एक्चुअली मैं इसको अभी सॉल्व कर रही हूँ, तो उससे बेसिक पे कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा करके बताती हूँ आपको। ओके ओके उसको कंपेयर करके कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है। अब आपका ये जो इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 3 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 4 को आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। यही काम हमने उस डेरिवेशन में भी किया था। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय x and by 4 by y and adding both the equations we obtain, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, we will obtain x square del square u upon del x square plus 2xy del square u upon del y del x del y plus y square del square u upon del y square। बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप देख लीजिए, यहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड में x del u upon del x plus y del u upon del y शिफ्ट हो जाएगा, कॉमन लेके 2 cos 2u minus 1 आ जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। x del u upon del x plus y del u upon del y का वैल्यू ऑलरेडी sin 2u है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, इसे sin 2u पुट कर दिया और इसे थोड़ा इवेल्युएट कर लिया, 2 as it is, this 2 as it is, cos 2u को हमने लिख दिया 1 minus 2 sin square u and this minus 1 as it is, this minus 1 as it is। I repeat, 2 as it is, cos 2u can be written as 1 minus 2 sin square u minus 1 as it is, and the value of this expression is sin 2 as we solved in part 1। ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारा बन गया 1 minus 4 sin square u sin 2। This was we had to do। Guys, any doubt in this question? Please ask me. Any doubt in first part or second part? You may ask, please. सर ये लास्ट लाइन जो है वहाँ 2 minus 4 sin square u आना चाहिए ना? देख लेते हैं ओ सॉरी सर, कैलकुलेशन। -1 है, सॉरी सॉरी सर, सही है सर, मैंने -1 नहीं किया था। ओके Yes, सर। 2, yes। Anybody else, any doubt in this question? Please ask me. This question is very, very important. सर यहाँ पे y होगा ना? कहाँ पे? y del u by del y। Yes, of course। Mr. Y del u upon del y। Okay।
If there is no doubt, then ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको स्किप किया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और आपको सबको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है और अगर किसी को नहीं आता है तो मुझसे पूछेगा। Come to this question. If theta is a function of rt, which is t raised to the power m e raised to the power minus r square upon 4t, यहाँ पे थीटा एक फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है r and t का। थीटा इज a function of two variables r and t, which is t raised to the power m e raised to the power minus r square upon 4t. Then find the value of m, which makes 1 upon r square del upon del r of r square del theta upon del r is equal to del theta upon del t. देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट द क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। एक फंक्शन आपको गिवन है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ आरटी। थीटा इज द फंक्शन ऑफ आरटी। जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स वाई होता है ना, एक्स एंड वाई वेरिएबल का फंक्शन, वैसे यहाँ पे थीटा फंक्शन दो वेरिएबल का है, आर एंड टी का, राइट। आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए m का वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हिच मेक्स 1 अपॉन r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल r इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल t। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले LHS को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, RHS को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। The important part is that you have to differentiate correctly. आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये डेल थीटा अपॉन डेल आर है, इसका मतलब है थीटा का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग टी एज ए कांस्टेंट। ये देखिए डेल थीटा अपॉन डेल टी का मतलब है थीटा का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग आर एज ए कांस्टेंट। और ये जो एक्सप्रेशन आएगा आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, इस एक्सप्रेशन का r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग t एज ए कांस्टेंट। तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, यू हैव टू assume t एज ए कांस्टेंट। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, you have to assume r as a constant because theta is a function of two variables r and t. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम डेल थीटा अपॉन डेल आर का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, उसे r से मल्टीप्लाई कर देंगे। r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर का जो वैल्यू आएगा उसे हम r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद में जो वैल्यू आएगा उसे हम 1 अपॉन r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा LHS हो जाएगा। और RHS में हम डेल थीटा अपॉन डेल टी इवेल्युएट करके रख देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन, थीटा ऑफ आर टी इज इक्वल टू टी रेज़ टू द पावर m e रेज़ टू द पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t, प्रोडक्ट फॉर्म में है फंक्शन, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए इसने डेल थीटा अपॉन डेल आर का वैल्यू इवेल्युएट किया, तो यहां से आप डेल थीटा अपॉन डेल आर का वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं टेकिंग t एज ए कांस्टेंट। तो t रेज़ टू द पावर m कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आपको r के रेस्पेक्ट में करना है। चेन रूल का आपको ध्यान रखना है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब डेल थीटा अपॉन डेल आर जो आया है इसको आप r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए डेल थीटा अपॉन डेल आर को हमने ये r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, ये वाला मिल गया। अब ये जो r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर आया है इक्वेशन 4, इस वैल्यू को हम r के रेस्पेक्ट में वापस डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। ये देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r। ये देखिए r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर को हमने r के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, तो हमें मिल गया ये वाला एक्सप्रेशन।
राइट। इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट कर लिया, थीटा वगैरह का वैल्यू जो भी है सब पुट करके आपको ये मिल गया। अब इस ये आपको मिला डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर। अब इसे 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो आपको ये मिल गया। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर का वैल्यू ये वाला हो गया, मतलब LHS आपका ये वाला हो गया, LHS ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर। ये बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। थीटा और आर और टी में घबराना मत आप, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है वैसे यहाँ थीटा इज ए फंक्शन ऑफ आर टी है, बस उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए आप ही कीजिएगा इसको। तो LHS आ गया। अब RHS इवेल्युएट कर लिया, देखिए इसे डेल थीटा अपॉन डेल टी, दिस इज RHS, ये RHS का वैल्यू आ गया डेल थीटा अपॉन डेल टी। क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, आर को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए। अच्छे से दिया हुआ है, आप अच्छे से चेक कीजिए इसको, अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो डेल थीटा अपॉन डेल टी को जब पूरा इवेल्युएट किया तो आपका वैल्यू आ गया ये वाला। तो एक वैल्यू आ गया हमारा वो वाला LHS और एक ही आ गया हमारा RHS। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए, एक तो ये वाला LHS है -3 अपॉन 2t प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा, और एक ये RHS है m अपॉन t प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा। जब इन दोनों को इक्वल करके कंपेयर करेंगे तो ये m का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, m इज इक्वल टू -3/2। दिस इज द आंसर। Simple comparison. You just equate both the values LHS and RHS and get the value of m by comparison. That's it. Any doubt in this question? It's a simple, straight question, but आपको थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इवैल्यूएशन इतना डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। यस, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। एनीबॉडी? No doubt, no doubt, no doubt. Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. Very good. So this is it for today, and very soon today I will share the syllabus of your first midterm examination in the official group, official WhatsApp group. और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो प्लीज़ गूगल क्लासरूम ज्वाइन कीजिए, और जितने भी नोट्स मटेरियल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको पढ़िए, असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशंस भी गिवन हैं, और कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए। ओके, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you. Thank you. Thank you all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.